کیا صرف نیت اور نظر کا پاک ہونا ہی کافی ہے؟ کیا عورتوں کا اشتہار بازی کا نمونہ بننا اور اپنے آپ کو بطور نمائش پیش کرنا صحیح ہے؟ کیا اسلام نے پردے کا حکم صرف عورتوں کو دیا ہے؟ حجاب انسانیت کے فائدے کے لیے کیسا ہے؟ اور حجاب میں کون سا ایسا روحانی اور دنیاوی فائدہ چھپا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس شارٹ فلم کے ذریعے۔ تو دوستو، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم ایکٹر سمیر جی۔ سمیر جی، آپ ایک مشہور سیلیبریٹی ہیں۔ جس فلم میں بھی آپ کام کرتے ہیں وہ مووی سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہے۔ اس وقت پورا دیش آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہا ہے اور آپ کی باتوں پر تالیاں بھی بجا رہا ہے۔ تھینک یو، ہمارے فینس ہماری جان ہیں، آپ کی محبتوں نے ہمیں سپر اسٹار بنایا ہے۔ سمیر جی، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے اور خاص کر سب جانتے ہیں کہ آپ کافی کنٹروورسی میں گھرے رہتے ہیں۔ اب میں اس انٹرویو کا آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال تھوڑا ہٹ کر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ سوال کیجئے۔ یہ جو مسلموں میں پردے یعنی حجاب کا چلن ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پردہ ایک نہایت بکواس اولڈ ایڈیشن ہے، بولے تو تکیہ نوسی۔ پردہ عورتوں کی غلامی کا سمبل ہے اور ان کی ترقی کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میرا بس چلے تو پردے جیسی رسم کو پوری دنیا سے ختم کر دوں۔ اوہ، مجھے نہ معلوم تھا کہ آپ پردے کے اتنے سخت خلاف ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ایک لائیو شو ہے جس میں ہمارے آڈینس خاص کر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آڈینس ویڈیو کالز کے ذریعے سمیر جی سے سوال کریں گے جن کے جواب سمیر جی دیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں مس فاریہ جی۔ مس فاریہ جی، آپ اپنا سوال کریں۔ سمیر جی، میرا نام فاریہ احمد ہے۔ میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی اور میں نے یہاں ٹی وی پر آپ کا پروگرام دیکھا، اور حجاب اور پردے پر جو آپ کے اوپینین ہیں اسے سننے کے بعد میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتی فاریہ جی؟ سمیر جی، آپ کے خیال میں پردہ عورتوں کی غلامی کا سمبل ہے، لیکن ہسٹری تو کچھ اور کہتی ہے۔ ہسٹری کیا کہتی ہے؟ سمیر جی، مجھے پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملا کہ غلاموں کو پردے میں رکھنے کا رواج رہا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ملا ہے کہ پرانے زمانے میں کنیز عورتیں بکنے کے لیے بازاروں میں سجا سنوار کر کھڑی کی جاتی تھیں۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی خوبصورتی کے دام لگاتے تھے اور وہ کنیزیں بک جایا کرتی تھیں۔ اب آپ بتائیے، غلامی کا سمبل کیا ہوا پھر؟ حجاب میں رہنے والی عورت یا بازار میں شو پیس بن کر رہنے والی عورت؟ آپ میری بات کا جواب دیجیے سمیر جی۔ تو فی الحال ہمیں لائن یہیں پر ڈسکنیکٹ کرنا ہوگی، اور مس فاریہ جی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوالوں سے سمیر جی کے بھی پسینے چھوٹ چکے ہیں۔ فی الحال ہمیں جانا ہوگا یہاں پر ایک بریک کے لیے۔ آپ کہیں مت جائیے گا، جلدی لوٹتے ہیں بریک کے بعد۔ واہ، کیا بات ہے فاریہ، تم نے تو سمیر کی بولتی ہی بند کر دی۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو جو آفس میں روز میرے باس مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں چپ رہ جاتی ہوں۔ کون سا سوال روشنی؟ آخر یہ پردے کی رسم صرف مسلم سماج میں کیوں ہے، کسی اور مذہب میں کیوں نہیں؟ روشنی، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پردہ یا حجاب صرف مسلم سماج میں ہے، اور اگر تمہاری نظر میں پردہ ایک اوپر سے نیچے تک ڈھکنے والا کالا لبادہ ہے تو دین اسلام اس کی پہچان نہیں بتاتا کہ کالا لبادہ تو صرف ایک ٹائپ ہے پردے کا، ورنہ حجاب کے تو اور بھی طریقے ہیں۔ اچھا، اور کون سے طریقے ہیں؟ جیسے کہ قرآن میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 اس بارے میں یہ کہتی ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں،
सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। अब तुम ही बताओ इस आयत से क्या मतलब निकलता है? तुम बताओ, मैं इसे समझना चाहती हूँ। इस आयत में सबसे पहले नजर का हिजाब है जो मर्द और औरत दोनों के लिए है। उसके बाद हिजाब या पर्दे की और भी स्टेजेस आती हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल को चूज करती हो, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है वो उतनी ही ज़्यादा पोशीदा होती है। एक पत्थर सड़क पर यूं ही फेंक दिया जाता है और हीरा उसको लोग हिफाजत से सेफ में महफूज करके रखते हैं। और तुमने ये थॉट भी सुना होगा, बी लाइक अ डायमंड नॉट स्टोन फाउंड एवरीवेयर। बहरहाल हिजाब का मतलब ये हुआ कि किसी को बुरी निगाहों से मत देखो और खुद भी ऐसे लिबास ना पहनो कि तुम्हारा लिबास दूसरों को गलत निगाहों और नजरों की दावत दे अपनी तरफ। और इस तरह का हिजाब हर दौर और हर मजहब में रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और ये हिजाब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, अदर कम्युनिटीज में भी पाए जाते हैं। क्या तुमने क्रिश्चियन में नन्स को नहीं देखा? उनका सफेद लिबास एक किस्म का हिजाब ही तो है। और जब नजरों का हिजाब या किसी और किस्म का हिजाब किसी भी औरत या मर्द की तरफ से हटता है तो वो रेप और जिना जैसे क्राइम्स को दावत देता है। शायद इसीलिए अब औरतों के खिलाफ क्राइम ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि हिजाब कम हो गया। जब बेहिजाब औरत रास्ते से लोगों के दरमियान से होकर गुजरती है तो लोगों की नजरों में उसके लिए एक जलालत और सिर्फ एक बेइज्जती होती है। लेकिन इसी के बरक्स जब कोई बाहिजाब औरत उसी रास्ते से गुजरती है तो उन्हीं लोगों की नजरों में उस औरत के लिए इज्जत, वकार और पाकदामनी होती है। हिजाब जैसी पाको पाकीज़ा तरबियत देकर हमारे बुजुर्गों ने हम पर एहसान किया है। और मुझे याद है आज भी वो दिन कि जब मैं बचपन में अपनी माँ के साथ बैठी थी। अम्मी, हिजाब करना क्यों जरूरी है? बेटी, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है। उसने उसको वो तमाम राइट्स दिए हैं जो वो डिजर्व करती है। और दीन भी औरतों से कुछ चाहता है। दीन हमसे क्या चाहता है? वो ये कि औरत पाक दामन रहे, बाहिजाब रहे और खुद को गैरों की निगाहों से महफूज रखे। मुझे भी हिजाब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुम भी 9 साल की मुकम्मल हो गई हो और तुम्हारे पे भी अब हिजाब वाजिब हो गया है। अम्मी, कुछ लेडीज सिर्फ ब्लैक कलर का ही चादर या बुर्का पहनती हैं, क्या ये भी कंपलसरी है? बेटी, हिजाब का मतलब कोई खास पैटर्न या ड्रेस नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर का ही नकाब या बुर्का ओढ़ा जाए तो ही वो हिजाब कहलाएगा। तो फिर हिजाब की असली मीनिंग ये है कि अपने जिस्म को इस तरह से छुपाया जाए और इस तरह के लिबास पहने जाएं कि जिस्म नुमाया ना हो, कि देखने वालों को अट्रैक्ट करें। अम्मी, क्या मैं इस हिजाब के साथ सक्सेस हो सकती हूँ? हाँ बेटी, वुमेन को इस्लाम ने तमाम राइट्स दिए हैं, बस उसे हिजाब की पाबंदी करना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर ही वाजिब है। प्रॉफिट ने ये नहीं कहा है कि सिर्फ मर्द ही इल्म हासिल कर सकते हैं, बल्कि औरत को भी हक दिया है, लेकिन हिजाब के साथ। अम्मी, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फारिया। वालेकुम अस्सलाम। अरे रोशनी, आओ बैठो। अच्छा ये बताओ फारिया, तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दिलवाने के लिए किसी के पास ले जाने वाली थी, तो बताओ कब चलना है? हाँ रोशनी, मैं तुम्हें अपनी एक मौलिमा साहिबा के पास ले चलूँगी जो तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात दे देंगी। लेकिन हाँ, कल तुम वक्त पर पहुँच जाना। अच्छा ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मैं 10 बजे तुम्हें वहीं मिलती हूँ। और फारिया, इतने दिन बाद आना हुआ आपका? जी, हमने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। और ये मेरी फ्रेंड रोशनी है। एक्चुअली इसके माइंड में बहुत सारे सवालात हैं जो ये आपसे करना चाहती है, तो मैं इसको आपके पास लेकर आ गई ताकि आप इसके सवालात के जवाबात दे सकें। जैसे कि आज हमारा मुआशरा बहुत तेज़ी से वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है। छोटे छोटे वेस्टर्न कपड़े पहनना, अपने जिस्मों की नुमाइश करना बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है और लोग उसके पीछे बहुत ही तेज़ी से भाग रहे हैं। तो ये आपसे ये जानना चाहती हैं कि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि औरत ने खुद को नहीं पहचाना। वो यही नहीं समझ रही कि उसकी कदर व मंजिलत क्या है। आखिर ये पर्दे के मुखालिफिन लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? पर्दे के मुखालिफिन इस बात से कन्विंस करते हैं कि पर्दा एक जुल्म है। औरत चाहे जैसे रहे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिजाब आज़ादी छीनने का नाम नहीं है, बल्कि उसको पाक दामन बनाने का नाम है, गैरों की बुरी नज़रों से महफूज रखने का नाम है। अच्छा ये बताइए, क्या औरत हिजाब में जॉब कर सकती है?
बिल्कुल कर सकती है। औरत हिजाब में हर काम वो बाहर का कर सकती है जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है, और इस्लाम औरत को तालीम और तरक्की से नहीं रोकता। अच्छा ये बताएं, इस्लाम ने इस सिलसिले में औरत को क्या हुक्म दिया है? इस्लाम ने ख़ास तौर पे ताकीद की है कि औरत जिस कदर संजीदा और पाक दामन होगी, अपने हिजाब से खुद को बुरी नज़रों से बचा के रखेगी, उसके एहतराम में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा और समाज में बढ़ते हुए क्राइम्स भी ख़त्म होंगे। आ गई आप? आज फिर ऑफिस लेट पहुंची हैं आप? नो सर, 9:05 हुए हैं और 9:10 तक पहुंचना लेट नहीं माना जाता। ये रूल आपकी तरफ से तो है। ओके, लेकिन लड़कियों को हिजाब में आना है, ऐसा तो मैंने कोई रूल बनाया नहीं। सर, औरतों को हिजाब में नहीं आना है ऐसा भी तो कोई रूल नहीं है। अगर मैं ऐसा रूल बना दूं तो मैं कोई और कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हिजाब में आने की परमिशन देता है, क्योंकि हिजाब औरत का हक है और इस हक को छीनने का किसी को राइट नहीं। सोच लो, अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पहाड़ी रही तो तुम्हें कोई कंपनी नौकरी नहीं देगी। मुझे हर वो कंपनी जॉब देगी जिसे मेरे लिबास से ज्यादा मेरे टैलेंट की जरूरत होगी। अरे आखिर तुम औरतों को ये गुलामी की बेड़ियां पहनकर क्या हासिल होता है? हिजाब गुलामी नहीं है, हिजाब हमारी आन और वक़ार की पहचान है। और गुलाम तो मैं उस वक्त कहलाऊंगी जब अपनी बॉस की मर्जी के मुताबिक बेहिजाब हो जाऊं। लेकिन रोशनी ने कंपनी की नौकरी की है, अपनी काबिलियत और अपने काम की सैलरी ले रही हूँ, किसी का गुलाम बनने की सैलरी नहीं ले रही और न कभी लूंगी। ओके, आई एम सॉरी, आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अरे वैसे भी तुम ऑफिस में नंबर 1 हो काम में। ठीक है, काम करो तुम अपना। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और दिखाने जा रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन। इस स्टिंग ऑपरेशन से आप समझ सकते हैं कि फैशन की आड़ में लोग कैसे औरतों के जिस्म की नुमाइश करके कैसे अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन में कैसे एक एडवर्टाइजर से बात हो रही है। औरत हमारे लिए एक ऐसा बाजार है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती, इसलिए हमारी कंपनी औरतों की नुमाइश फैशन शो के नाम पे करती है ताकि हमें मुंह मांगी कीमत मिल सके। हिजाब और पर्दे के खिलाफ जितना हो सके प्रोपेगेंडा करो, क्योंकि औरत जितना ओपन रहेगी उतना हम कामयाब होंगे और हमारा कारोबार भी उतना चमकेगा। तो देखा आपने कि कितने शर्म से डूब मरने वाली बात है कि औरत के लिए इस तरह के लोग क्या फिक्र रखते हैं, औरतों का गलत इस्तेमाल करके अपना कारोबार चला रहे हैं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हिजाब औरत को इज्जत देता है और ये औरत का हक भी है।